بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا، لاسٹ ٹائم ہم نے جو لیکچر دیا تھا آپ کو وہ واحد ملکیتی کاروبار کا تھا۔ اس کی ہم نے خوبیاں بھی پڑھی، خامیاں بھی پڑھی۔ اب کامرس میں دوسری قسم کا جو کاروبار ہے وہ پارٹنرشپ ہے، جس کو اردو میں شراکت کہتے ہیں۔ اب شراکت سے کیا مراد ہے؟ جس میں کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 20 بندے کاروبار میں جب مل کر ایک شراکت بنا لیں گے تو اس کو پارٹنرشپ کہتے ہیں۔ اس کی ڈویژن کچھ اس طرح ہے کہ اگر کم از کم 2 زیادہ سے زیادہ 20 بندے ہوں گے تو ایک عام کاروبار کے لیے پارٹنرشپ بنائی جا سکتی ہے۔ اگر بینک کی پارٹنرشپ بنانی ہو تو اس کے لیے کم از کم 2 زیادہ سے زیادہ 10 پارٹنرز ہوتے ہیں جو مل کر کاروبار چلاتے ہیں۔ تو پارٹنرشپ کے بھی اسی طرح کچھ فوائد ہیں، کچھ نقصانات ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کی تعریف دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی بھی لیگل کام کچھ پارٹنر مل کر جب پرفارم کریں گے، ان کی تعداد کم از کم 2 زیادہ سے زیادہ 20 ہوگی، بینک کے لیے کم از کم 2 زیادہ سے زیادہ 10 ہوگی، تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ کیا کہیں گے؟ پارٹنرشپ کہیں گے، شراکت کہیں گے۔ اور یہ تمام جو پارٹنر ہوتے ہیں مل کر آپس میں ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ نفع نقصان کے سارے کیا ہوں گے؟ ذمہ دار ہوں گے۔ سب کی ڈیوٹیز بتا دی جاتی ہیں، سب کی لائبلٹیز بتا دی جاتی ہیں، سب کے جو رائٹس ہیں وہ ان کو بتا دیے جاتے ہیں کہ آپ کے یہ اس میں لیگل جو ہے کیا رائٹس ہوں گے۔ تو جب اس طرح کا کاروبار سٹارٹ کیا جاتا ہے تو آپس میں بیٹھ کے پہلے ایک معاہدہ کیا جاتا ہے تاکہ بعد میں پرابلم پیدا نہ ہو کہ کوئی بندہ یہ نہ کہ میری یہ ذمہ داری نہیں تھی۔ تو کاروبار میں ایک ڈسپیوٹ جو جھگڑا ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے سب سے پہلے اس میں میٹنگ کر لی جاتی ہے، ایک کانٹیکٹ کر لیا جاتا ہے، اس میں سب کے رائٹس، ڈیوٹیز، لائبلٹیز کو ڈیفائن کر دیا جاتا ہے اور سائن کرا دیا جاتا ہے۔ جب اس طرح کا ورک کر لیا جائے کہ تمام پارٹنرز کے رائٹس، ڈیوٹیز، لائبلٹیز جو بھی ریکوائرمنٹ ہیں لکھ کر ایک پیپر پر سب سے سائن کرا دیے جائیں تو وہی پارٹنرشپ ڈیڈ کہلاتا ہے۔ کہ بعد میں اگر کوئی اس سے منحرف ہونے لگے، کوئی انکار کرنے لگے، کوئی بےمانی کرنے لگے تو اس کو وہ اس کا ریٹن جو ہے ایگریمنٹ دکھا دیا جاتا ہے، تو کئی قسم کے مسائل، ڈسپیوٹ کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ when 2 or more person، جب 2 یا زیادہ سے زیادہ 20 بندے بیکم جوائنٹ آنر، بن جاتے ہیں مشترکہ مالک کسی بھی کاروبار کے، with a view to carrying on business، تاکہ وہ کاروبار کو کیا کر سکے؟ چلا سکے۔ کیری آن کا مطلب کیا ہے؟ چلا سکے۔ اینڈ شیئرنگ دا پروفٹ اور لاس، اور کاروبار کے نفع نقصان کو کیا کر سکے؟ شیئر کر سکے۔ ان ایگریڈ پرپورشن، کس حساب سے؟ آپس میں ایگریمنٹ کے تھرو، ایگریمنٹ کے حساب سے، ایگریمنٹ کی پرپورشن سے، نسبت سے نفع نقصان کو کیا کریں گے؟ آپس میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ پارٹنرشپ کم انٹو ایگزسٹنس، تو اس طرح پارٹنرشپ کیا ہوگی؟ وجود میں آ جائے گی۔ سادہ سی ڈیفینیشن ہے، کم از کم 2 زیادہ سے زیادہ 20 بندے جب آپس میں مل کر کوئی کاروبار سٹارٹ کرنے کا معاہدہ کرتے ہیں اور اس میں یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ نفع نقصان کس حساب سے آپس میں ڈیوائڈ کیا جائے گا، تو اس طرح پارٹنرشپ کیا ہوتی ہے؟ وجود میں آ جاتی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے پارٹنرشپ کے کچھ فوائد ہیں، میرٹس آف پارٹنرشپ۔ بیٹا، میرٹس، ایڈوانٹیجز، ایک ہی مطلب ہے اس کا کہ جب ہم پارٹنرشپ بناتے ہیں تو اس کی خوبیاں کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ تو سب سے پہلا کیا ہے؟ لارج کیپٹل، مین لارجر کیپٹل۔ ہم نے پیچھے ٹاپک پڑھا تھا واحد ملکیتی کاروبار جس کا مالک ایک ہوتا ہے، سنگل اونر ہوتا ہے، سول ٹریڈر ہوتا ہے۔ اس میں وہ ایک نہیں ہوتا، 2 یا 2 سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ جب زیادہ لوگ ہوں گے آٹومیٹیکلی کامن سینس ہے ان کا پیسہ بھی کیا ہو جائے گا؟ زیادہ ہو جائے گا، کیپٹل بھی زیادہ اکٹھا ہو جائے گا۔ تو سول ٹریڈرشپ کی نسبت پارٹنرشپ میں ہم تھوڑا سا زیادہ بڑے لیول پہ کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم میڈیم لیول کا، لارج سکیل کا کاروبار پارٹنرشپ کے تھرو ڈیو ٹو لارج کیپٹل سے سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ زیادہ پیسہ ہونے کی وجہ سے کاروبار میں کئی فوائد ہیں کہ ہم کس چیز کا را مٹیریل پرچیز کریں گے تو وہ ہول سیل کے حساب سے پرچیز کریں گے، اس کی قیمت بھی کیا دینی پڑے گی؟ ہمیں کم دینی پڑے گی۔ خطرات ہیں تو سب میں ڈیوائیڈ ہوں گے، اس میں نفع ہے تو سب میں ڈیوائیڈ ہوگا۔ تو اس میں پارٹنرشپ کا سب سے
पहला जो एडवांटेज क्या है, इसमें ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो सकता है। सेकंड पॉइंट, म्यूचुअल कंसल्टेशन, बाहिमी मुशावरत, क्योंकि जितने भी पार्टनर होते हैं कारोबार के मालिक होते हैं। कोई भी काम करेंगे उसमें सबसे मशवरा लेना पड़ेगा। जब तक सबसे मशवरा नहीं लेंगे अप्रूवल नहीं होगी। क्यों कि जब जिससे आप मशवरा नहीं लेंगे वो आपके लिए प्रॉब्लम पैदा कर देगा कि मैं तो इस तरह का फंस गया, उसके मशवरा ना लेने की वजह से नुकसान हो जाता है, तो वो नुकसान में आपको शेयर नहीं देगा। क्यों? वो कहेगा मुझसे पूछा था आपने। क्योंकि सारे पार्टनर बाहिमी मुशावरत से कारोबार को चलाएंगे, तो इस तरह कोई भी बात होगी, कोई भी डिसीजन होगा, वो बेहतर सामने आएगा। क्यों? एक गलती कर रहा है, दूसरा उसको बता देगा, उसकी करेक्शन कर देगा, तो गलती के चांसेस काफ़ी सारे कम होते हैं, क्योंकि इसमें बाहिमी तौर पर म्यूचुअल कंसल्टेशन, बाहिमी मुशावरत से ही फैसले किए जाते हैं, काम को चलाया जाता है। तीसरा पॉइंट, डिवीजन ऑफ वर्क, इसमें काम को तमाम पार्टनर में डिवाइड कर दिया जाता है और हर पार्टनर को वो काम दिया जाता है जिसका वो बेहतर तौर पर एक अमल कर सकता है, जिसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है, जिसमें उसको महारत है। तो इस तरह हर बंदा अपनी महारत वाले काम में अपनी ड्यूटी अडॉप्ट करके, उसको ड्यूटी देकर हम उसको काम को बेहतर तौर पर क्या कर सकते हैं, उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो डिवीजन ऑफ वर्क का एक और फ़ायदा ये है कि जब काम को डिवाइड कर दिया जाएगा, हर बंदा उसको फुल एफिशिएंसी से परफॉर्म करेगा, उसको बेहतर तौर पर परफॉर्म करेगा, उसको अपने काम में बार बार उसको परफॉर्म करने की वजह से स्पेशलाइजेशन हासिल हो जाएगी, तखसीस कार हासिल हो जाएगी। तो इस तखसीस कार की वजह से उस पार्टनरशिप के थ्रू जो कारोबार किया जा रहा है काफ़ी फ़वायद हासिल होंगे, नुकसान के चांसेस कम से कम होंगे। चौथा पॉइंट, पर्सनल इंटरेस्ट है इसमें, ज़ाती मुफाद। क्यों? जो इसके मालिक हैं, जो इसके पार्टनर हैं, जो इसके शेयर होल्डर हैं, समझ लो वो खुद ही कारोबार को चला रहे हैं, तो कोशिश करते हैं कि वो जब खुद अपना कारोबार खुद चला रहे हैं तो उनका पर्सनल इंटरेस्ट होगा। क्यों? ज़ाती मफाद होगा। वो कहेंगे अपने काम को हम बेहतर अंदाज में जब परफॉर्म करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा ही मुनाफा ज़्यादा होगा, हमारी ही तरक्की होगी, हमारे ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या होगा, इजाफा होगा। तो पार्टनरशिप में जितने पार्टनर्स होते हैं उनको कारोबार में पर्सनल इंटरेस्ट लाजमी होता है। फिफ्थ पॉइंट, कॉन्टैक्ट विद कस्टमर। इसमें यह होता है कि खुद कारोबार को चला रहे हैं, कस्टमर के साथ कॉन्टैक्ट भी खुद कर रहे हैं, कस्टमर के साथ कोई डील करनी है खुद कर रहे हैं। तो इस तरह कारोबार में बेहतरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि जब मालिक खुद डील कर रहा है उसका बिहेवियर कुछ और होगा, एम्प्लॉय डील करेंगे उनका बिहेवियर कुछ और होगा। तो इस तरह हम कस्टमर के साथ देखते हैं कि पार्टनरशिप में जब खुद कॉन्टैक्ट करेंगे, खुद मुआहदा करेंगे, खुद डीलिंग करेंगे, तो उसमें नुकसान के चांसेस कम से कम होंगे, बेहतरी के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। 6 पॉइंट, लेस रिस्क ऑफ फ्रॉड। इसमें फ्रॉड के चांसेस भी क्या होते हैं, कम से कम होते हैं। क्यों? जब खुद कारोबार को मैनेज कर रहे हैं, किसी और एम्प्लॉय को बहुत कम चांसेस मिलते हैं कि उसमें फ्रॉड करे। अगर कोई फ्रॉड करता है तो फौरन पकड़ा जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे इसमें उसकी निगरानी के लिए लोग क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। इजी फॉर्मेशन, इसके लिए भी बड़ा आसान तरीकाकार है कि कुछ पार्टनर मिलकर कारोबार स्टार्ट करते हैं। अब उनकी मर्जी है कि उसको वो रजिस्टर्ड करें या ना करें। रजिस्टर्ड कराएंगे कई किस्म के फ़वायद हासिल होंगे, नहीं रजिस्टर्ड कराएंगे वो इनको जो एक रजिस्ट्रेशन के फ़वायद है वो हासिल नहीं होंगे। तो इसके लिए भी इजी फॉर्मेशन है, कोई लीगल ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती। हम आसानी से कारोबार को स्टार्ट कर सकते हैं और उसको सरअंजाम दे सकते हैं। 8वां पॉइंट, क्रेडिट फैसिलिटी है। इसमें कई लोग होते हैं, फर्ज किया उसमें से कुछ गरीब हैं, पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, उसको नहीं मिलेगा कर्जा, लेकिन कई पार्टनर ऐसे होते हैं जिनके पास पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, उसकी बेस पे उसको मॉर्टगेज करके हम कर्ज़ों की सहूलियात हासिल कर सकते हैं। तो इसमें कर्ज हासिल होने की सहूलियात भी क्या होती हैं, ज़्यादातर होती हैं, क्योंकि ज़्यादा पार्टनर होने की वजह से, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ की वजह से ईजीली हम कर्ज़े हासिल कर सकते हैं। बेटर डिसीजन, जब हम 9वां पॉइंट है ये, जब ये कारोबार स्टार्ट करते हैं, कई लोग होते हैं मिलके बाहमी मुशावरत से, कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं, तो इसमें डिसीजन भी बेहतर सामने आते हैं और कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर डिसीजन इस तरह ले कि हमारे लॉस के चांसेस कम से कम हों, बेहतरी के, तरक्की के, मुनाफे के चांसेस क्या हों, ज़्यादा हों। क्यों? मुनाफा भी उन्हीं का है, लॉस भी उन्हीं का है। तो कोशिश की जाती है कि ऐसे फैसले करें जो बेहतर हों, जो मार्केट की मीन मुनासबत से किए जाएं, कि हम ऐसा काम करेंगे इसमें हमारा नुकसान कम से कम होगा। 10th पॉइंट, 10th एडवांटेज, सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट्स। इसमें हम एक्सपर्ट की सर्विसेज भी हासिल कर सकते हैं, मीन कई माहिरीन की। क्यों?
पार्टनरशिप में सरमाया सोल ट्रेडरशिप की निस्बत ज़्यादा होता है, तो उसमें हम किसी हद तक हमारे पास जो है ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हम इसमें एक्सपर्ट लोगों को हायर करके कारोबार में उनसे सर्विसेज हासिल करके कारोबार को तरक्की से हम किनार कर सकते हैं, कारोबार को एक्सपेंड कर सकते हैं हम। 11वां पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी, लचकदारी। इसमें भी ये फैसिलिटी है कि पार्टनर्स जब भी कोई फ़ैसला करें, उस फैसले के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम परमिशन लें रजिस्ट्रार से, गवर्नमेंट से, किसी इदारे से कि हम ये तब्दीलियां ला रहे हैं, आप हमें परमिशन दें। तो वो परमिशन खुद परफॉर्म कर सकते हैं, परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कारोबार में जब चाहे कोई फैसिलिटी कोई हासिल करना चाहें, कर्ज लेना चाहें, कारोबार के अंदर तब्दीलियां लाना चाहें, मैनेजमेंट में तब्दीलियां लाना चाहें, कारोबार में प्रोडक्ट को तब्दील करना चाहें, कर सकते हैं। इस तरह की तब्दीलियों के लिए कहीं से उनको इजाज़तनामा लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर हर काम में वो इजाज़त लेंगे इनकी आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। कारोबार में ये स्मूथली कई काम जल्दी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से कारोबार में काफ़ी रुकावटें पैदा हो सकती हैं कि अगर फ्लेक्सिबिलिटी ना हो तो। 12 पॉइंट, एक्सपेंशन इन कॉन्टेक्स्ट। जब खुद कारोबार कर रहे हैं, कोशिश होती है कि कारोबार वसी पैमाने पे फैले, तो इनके कॉन्टेक्ट्स बढ़ते हैं, लिंक्स बढ़ते हैं, कस्टमर इनके ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में होते हैं। क्योंकि इनको लालच होता है कि कारोबार जो है हमारा वसी पैमाने पे फैले, तो इस बेस पे ये होता है कि कारोबार को वसी पैमाने पे चलाने के लिए सेल बढ़ाते हैं, कॉन्टैक्ट्स बढ़ाते हैं, ताकि इनके नंबर ऑफ कस्टमर में क्या हो, इजाफा हो। 14 पॉइंट, रिडक्शन इन लॉस। इसमें एक और फ़ायदा ये होता है कि कारोबार जब हम करते हैं तो उसमें लॉस के चांसेस कम से कम होते हैं। क्यों? मालिक सारे खुद कारोबार को चला रहे होते हैं, तो उसमें ये होता है कि हर वो काम करते हैं जिससे लॉस के चांसेस क्या हो, कम से कम हो। एडमिशन एंड विथड्रॉल, इसमें पार्टनर कारोबार में दाखिल भी हो सकते हैं, जा भी सकते हैं विथड्रॉल, या कारोबार में अपना पैसा ये इन्वेस्ट कर भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि सब पार्टनर्स की रजामंदी हो। 15 पार्टनर हैं, 16वां पार्टनर कारोबार में एंटर होना चाहता है, तो पहले 15 पार्टनर अगर परमिशन देंगे तो नया पार्टनर एडमिट होगा, वरना नहीं होगा। अब 15 है, उनमें से एक जाना चाहता है, तो सबसे राय ली जाएगी कि ये अपना पार्टनरशिप में अपना जो एक हिस्सा है ख़त्म करना चाहता है, तो सब परमिशन देंगे तो जाएंगे। बग़ैर सबकी परमिशन के इसमें ना तो कोई पार्टनर आ सकता है, ना कारोबार को छोड़ सकता है। 16 पॉइंट, रिडक्शन इन कंपटीशन। इसमें यह होता है कि सबको पता है कि आपस में कारोबार हम कर रहे हैं, तो सारे पार्टनर के नफ़ा नुकसान के ज़िम्मेदार हैं और कोशिश करते हैं किसी के साथ कंपटीशन ना रखें। क्यों? अमूमन ये होता है कि कंपटीशन में फर्में बाज़ औक़ात ऐसा काम करती है कि जिसकी वजह से उनके लॉस के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। कैसे? फर्ज किया पब्लिसिटी कर रहे हैं, पब्लिसिटी का ना तो कंज्यूमर को फ़ायदा होता है, ना फर्म को फ़ायदा होता है, क्योंकि इसके ना तो प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर होती है, ना फर्म को कोई इसमें कॉस्ट में कोई कमी आती है, बल्कि कॉस्ट में क्या होता है, इजाफा होता है। तो जब ये इस तरह के कंपटीशन, फजूल किस्म के अनहेल्दी कंपटीशन, गैर सेहतमंद मुकाबला जो होता है वो पब्लिसिटी का होता है, नहीं परफॉर्म करते, तो कारोबार में इस तरह के कंपटीशन की मुमकिनात क्या हो जाते हैं, कम से कम हो जाते हैं। 17 एडवांटेज क्या है, मिनॉरिटी प्रोटेक्शन। इसमें यह है कि हर पार्टनर कारोबार में अपनी राय दे सकता है, अगर उसका कैपिटल कम है या ज़्यादा है, लेकिन वो कारोबार का पार्टनर मालिक होता है, तो कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, कोई पॉलिसी दी जा रही है, उसकी बात को अहमियत दी जाती है। इस तरह इसके अंदर जो अक़लियत में, मिनॉरिटी में लोग होते हैं, उनको भी तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। 18 पॉइंट, सीक्रेसी। इसमें राज की बात राज में रहती है। किन के दरमियान? जितने पार्टनर्स होते हैं, इनके लिए ज़रूरी नहीं होता कि अपने जो तमाम मामलात हैं, अपने अकाउंट्स हैं, सेल परचेज, जो भी मामलात हैं कारोबार के, पब्लिश करें, गवर्नमेंट को दिखाएं, अवाम को दिखाएं। जैसा कि मुश्तरका सरमाया कंपनी का एक कारोबार है जिसमें तमाम काम गवर्नमेंट को भी दिखाने पड़ते हैं, अपने तमाम शेयर होल्डर को भी दिखाने पड़ते हैं, और अवाम को भी तमाम अपनी पब्लिसिटी करनी पड़ती है, अपने अकाउंट्स को पब्लिश करना पड़ता है, नफ़ा नुकसान शो करना पड़ता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि इस तरह की बातों को डिस्क्लोज़ किया जाए, तो इसमें जो राज की बातें हैं, सीक्रेसी बाकी रहती है, राज में रहती है। सेकेंड लास्ट पॉइंट, पब्लिक कॉन्फिडेंस। इसमें किसी हद तक, 100% हद तक नहीं, किसी हद तक अवाम का
اعتماد بھروسہ ہوتا ہے. کیوں؟ جیسا کہ بینک ہے آپ پہ اعتماد کرتے ہیں, لوگ آپ کو ادھار دیتے ہوئے, کاروباری نمائندے جو ہے فرمز ہیں ادھار دیتے ہوئے زیادہ ڈر نہیں ہوتا ان کو. کیوں نہیں ہوتا؟ وہ کہتے ہیں اگر ایک ہمارا جو اس کا جو پارٹنر ہے وہ نقصان یا بینکرپٹ ہو جاتا ہے, نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس کو دیوالیہ ہو جاتا ہے. دیوالیہ کا مطلب یہ ہے کہ انیبل ٹو پے ڈیٹ, آپ پہ ڈیٹ کی ڈیو ڈیٹ آ گئی ہے اور آپ ڈیٹ کی واپسی کرنے کے قابل نہیں ہے, تو ہم کہتے ہیں آپ کا دیوالیہ ہو گیا. تو اگر فرض کیا اس میں ایک پارٹنر کا دیوالیہ ہوتا ہے تو باقی تو ٹھیک ہے. تو قرض دیتے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک پارٹنر, دو پارٹنرز کا دیوالیہ ہوا ہے, باقی پارٹنرز کی فائنانشیل پوزیشن بہتر ہوگی, ہمیں قرضے کی ایزیلی واپسی ہو جائے گی. اگر کاروباری ایسٹس فلاپ ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, ان کے ختم ہو جاتے ہیں, تو ان کو ان کی پرائیویٹ پراپرٹی کو استعمال کر کے قرضوں کو پورا کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح ان پہ پبلک کانفیڈنس کسی حد تک ہوتا ہے. لاسٹ پوائنٹ, ایزی ڈیزولوشن. اس میں آپ کاروبار کو جب چاہو ایزیلی ڈیزالو کر سکتے ہو, کسی گورنمنٹ کے ادارے سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپس میں آپ میٹنگ کریں گے, کہیں گے اب ہم آگے نہیں چل سکتے, تو ایزیلی کاروبار کو جب چاہو ختم کر سکتے ہو, کوئی لیگل فارمیلٹیز پرفارم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بیٹا یہ پارٹنرشپ کی تعریف اور اس کے میرٹس کا ٹاپک مکمل ہوا. اس میں کوئی پرابلم ہو آپ کو جب ہم اپنا لنک دیں گے اس میں آپ ہمارے ساتھ اس طرح کی ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی, آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں ہم سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.